السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر، سوئے سنسار جاگے پاک پروردگار۔ بستی سے دور ایک اجڑے مقام میں پرانے زمانے کا ایک برج بنا ہوا ہے۔ اس کے دروازے کے باہر ایک سپاہی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے پہرا دے رہا ہے۔ یہ سپاہی 20 قدم آگے چلتا ہے اور پھر 20 قدم واپس لوٹ آتا ہے اور تمام رات اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ آسمان پر ستارے ایک ایک کر کے غائب ہو جاتے ہیں، مگر سپاہی برابر پہرا دیتا رہتا ہے۔ اس برج کے اندر کیا بند ہے؟ اس وقت جبکہ سب چرند پرند اور انسان دن بھر کے تھکے ہارے اپنے اپنے ٹھکانوں میں پڑے گہری نیند کے مزے لے رہے ہیں، یہ سپاہی اس بیابان میں کیوں پہرا دے رہا ہے؟ یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک رات جب اس سپاہی کو برج کے باہر پہرا دیتے دیتے 9 برس گزر چکے تھے تو یکایک اسے ایک چیخ سنائی دی۔ سپاہی پہرا دیتے دیتے ٹھٹر گیا اور اندھیرے میں ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اتنے میں پھر وہی چیخ سنائی دی۔ پھر تیسری بار تو اس زور کی چیخ سنائی دی کہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے برج کی دیواریں گر کر پاش پاش ہو جائیں گی۔ سپاہی ڈر گیا اور یہ بات بھی کچھ کم ڈرانے والی نہ تھی۔ آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے لگا اور بولا، خدا ہر بلا سے بچائے، اور پھر للکار کر کہنے لگا، اے شخص تو کون ہے جو مجھے اس وقت پکار رہا ہے؟ برج میں سے آواز آئی، ایک دیو ہوں جو 30 برس سے اس تنگ قید خانے میں بند پڑا ہے۔ سپاہی بولا، تو مجھے کیوں بلا رہا ہے؟ آواز آئی، اے نیک سپاہی، اس برج کے قفل کو توڑ دے اور مجھے آزاد کر دے۔ دیکھ، آج 30 برس ہو گئے ہیں، نہ میں نے زمین کی صورت دیکھی ہے نہ آسمان کی۔ اس تنگ قید خانے میں میرا دم گھٹ گیا ہے، مجھے آزاد کر دے، میں عمر بھر کے لیے تیرا غلام بن جاؤں گا۔ تجھے جس بات کی ضرورت ہوگی میرا نام لیجیو، میں فوراً حاضر ہو کر تیرا یہ حکم بجا لاؤں گا۔ یہ سن کر سپاہی نے برج کے دروازے کا فولادی قفل توڑ دیا اور دروازہ کھول دیا۔ یکایک دیو قید خانے میں سے نکل کر اندھیرے میں اس طرح چھپ گیا کہ جیسے کالی رات میں بجلی چمک کر غائب ہو جائے۔ اب سپاہی کو اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ میں نے کیا غضب کر دیا؟ ایک دیو کے کہنے میں آ کر اپنی برسوں کی بنی ہوئی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پل بھر میں صبح ہو جائے گی، سپاہی آئیں گے اور مجھے باغی قرار دے کر گرفتار کر لے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ رات ہی رات میں جہاں سینگ سمائے نکل جاؤں۔ یہ سوچ کر سپاہی نے اپنی ڈھال اور تلوار وہیں پھینک دی اور رات کے اندھیرے میں تیز تیز قدم اٹھاتا ٹھوکریں کھاتا ایک طرف کو چل دیا۔ صبح ہوئی، دن ڈھل گیا، رات ہو گئی، پھر دوسری صبح ہوئی، دن ڈھل گیا، رات ہو گئی، پر سپاہی بھوکا پیاسا برابر تیزی سے چلتا رہا۔ تیسرے دن جب تھکان سے اس کے پاؤں من من کے بھاری معلوم ہونے لگے اور چلنے کی ذرا طاقت نہ رہی تو وہ سڑک کے کنارے گر پڑا اور اپنی بدقسمتی پر اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، دنیا کے چاروں کونے چھان مارو پر مجھ سا عقل کا اندھا کہیں نظر نہ آئے گا۔ 9 برس تک میں دل و جان سے اپنے بادشاہ کی خدمت بجا لاتا رہا۔ اپنی تلوار کو تیز کرتے رہنے کے سوا مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہ تھی۔ اب ایک دیو کے پھسلانے سے میں بھوکوں مر رہا ہوں۔ اے کالے دیو، تجھ سے خدا ہی سمجھے۔ سپاہی کی بات ابھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ دیو نہ جانے کہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میاں سپاہی، کہو مزاج تو اچھے ہیں۔ ہائے، یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ سپاہی نے جواب دیا، ہاتھ پاؤں میں طاقت نہیں رہی، بھوک سے میری جان لبوں پر آئی ہے، رو نہیں تو اور کیا کروں؟ دیو بولا، بس اتنی سی بات ہے، لو اس کا ابھی علاج کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دیو اپنے روپیلے پروں کو پھڑپڑاتا ہوا ادھر ادھر اڑا اور پل بھر میں ایک خوان اور سراہی لے کر حاضر ہو گیا
और सिपाही के सामने तरह तरह के खाने चुन दिए। सिपाही ने पेट भरकर खाना खाया और पानी पिया। ये खाना कुछ ऐसा लजीज था कि सिपाही को अपनी सब तकलीफें भूल गईं और उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। तब देव ने कहा, मियाँ सिपाही, अगर तुम मेरे पास रहना चाहो तो मैं तुम्हें अपने महल में ले चलता हूँ। वहाँ तुम सुबह से शाम तक मज़े उड़ाओगे, जमुर्रत जैसे परों वाले मोरों का नाच देखा करोगे, रात को हंस के परों पर सोया करोगे। तुम्हारा बस ये काम होगा कि मेरी लड़कियों की रखवाली करो और उन्हें हर बुरी बात से बचाए रखो। सिपाही ने जवाब दिया, मुझे मंजूर है। तब देव ने उसे अपने शाने पर बिठा लिया और अपने चांदी के जैसे पर फड़फड़ाता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया। 3 दफ़ा उसने साथ साथ बादशाहतें तय कीं। 22वीं बादशाहत में एक महल नजर आया। ये महल स्याह गुंबद का बना हुआ था और इसके सुनहरे गुंबद सूरज की रोशनी में इस तरह दहक रहे थे कि जैसे भट्टी में ईंटें। देव सिपाही को अपने कंधे पर बिठाए इस महल के बाग में उतरा। इस वक्त उसकी तीनों खूबसूरत बेटियां बाग में फूल चुन रही थीं। जो ही उन्होंने अपने बाप की सूरत देखी, खुशी से उनके हाथों से फूल गिर गए और वो दौड़कर अपने बाप से लिपट गईं। देव ने बारी बारी तीनों बेटियों को गले से लगाया और कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हारा बाप तुम्हारे पास नहीं रह सकता। इसके जिम्मे जो काम है वो ऐसे कठिन है कि हमेशा उनमें उलझा रहता है। इसलिए अब वो इस सिपाही ज़ादे को लाया है। ये तुम्हारी हर तरह हिफाजत करेगा और तुम भी इसे अपना मुहाफिज और निगहबान समझना। इसकी खातिर तवाज़ो में कोई कसर ना उठा रखना। इसे कीमती से कीमती पोशाकें पहनाना और इसका हर तरह हुक्म बजा लाना, क्योंकि ये बहुत दानिशमंद शख्स है और बरसों बादशाह की खिदमत में रह चुका है। देव की बेटियां सिपाही को महल में ले गईं। खुशबूदार पानी से इसका मुंह धुलवाया और एक ऐसी पोशाक पहनाई जिसमें धनक के सातों रंग दहक रहे थे और सर पर ऐसा ताज पहनाया जो मालूम होता था चांदी और सूरज की किरणों को गोट कर बनाया गया है। फिर उसे राजहंस के परों से बने हुए पलंग पर आराम करने के लिए लिटा दिया। चुनाचे अब सिपाही मज़े से देव के महल में रहने लगा। देव की बेटियां इसका हर हुक्म बजा लाती। उसे किसी बात की परवाह न थी। ये दिन कुछ इस मज़े और आराम से गुजरे कि सिपाही ने समझा मैं एक ख्वाब देख रहा हूँ। दिल ही दिल में कहता, अगर ये वाकई ख्वाब है तो ए खुदा, 1000 बरस तक तो मेरी आंख ना खुले। लेकिन कायदे की बात है, उजाले के बाद अंधेरा और खुशी के बाद गमी आया ही करती है। थोड़े ही दिनों में सिपाही का दिल वहां रहते रहते उदास हो गया। जब चांदनी निखरी हुई थी तो सिपाही ने देखा कि दियो की तीनों बेटियां महल में से गायब हो गई हैं। सिपाही ने महल का कोना कोना छान मारा, लेकिन दियो की बेटियां कहीं नजर न आईं। तब तो सिपाही बहुत हैरान हुआ। आखिर मायूस होकर वो अपने हंस के परों वाले पलंग पर लेट गया। सुबह के वक्त सिपाही की आंख खुली तो क्या देखता है, दियो की तीनों बेटियां उसके सरहाने खड़ी मुस्कुरा रही हैं। सिपाही ने पूछा, रात को जब चांद निकला तो तुम तीनों की तीनों कहाँ गायब हो गई थी? दियो की बेटियों ने कहका लगाया और कहा, वहां जहां एक रात में 2 चांद निकले हुए थे। तब सिपाही ने अपने दिल में कहा कि ऐ शरीर लड़कियों, तुम नहीं बताती तो ना बताओ, मैं अपनी अकल से इस गुत्थी को सुलझा कर रहूंगा। अगली रात सिपाही झट अपने राजहंस के परों वाले पलंग पर जा लेटा और झूठ मूठ खराटे लेने शुरू कर दिए कि कोई देखे तो कहे बड़ी गहरी नींद सो रहा है। और जब चांद हरी भरी पहाड़ियों के पीछे से नमूदार हुआ तो वह आहिस्ता से पलंग पर से उठा और दबे पांव उस कमरे की तरफ चला जहां देव की बेटियां सोया करती थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर वो घुटनों के बल बैठ गया और दरवाजे की दर्ज में से अंदर देखने लगा। क्या देखता है कि दियो की बेटियों ने एक अजीबो गरीब कालीन बिछाया और उसके ऊपर चलती हुई फाख्ताएं बन गईं और खिड़की से बाहर उड़ गईं। ये देखकर सिपाही भी झट कमरे में दाखिल हुआ और कालीन पर चला तो सब्ज रंग का बुलबुल बन गया और वो भी उड़ता हुआ उनके ताक़ुब में निकल गया। बहुत दूर सफ़र करने के बाद एक मैदान नज़र आया। मैदान में एक बहुत ही आलीशान तख्त बिछा था जिसके दोनों तरफ रंग बिरंगे परों वाले मोर खड़े थे और परिंदे
दूर दूर से आकर उस तख्त के पास जमा हो रहे थे। वो तीनों फाख्ताएं भी उन परिंदों में जा मिली और सबज बुलबुल भी एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया। वो बड़े गौर से ये अजीब व गरीब सैर देखने लगा। क्या देखता है कि दूर मगरिब की तरफ से एक अजीब व गरीब किरण नमूदार हुई है और बड़ी तेजी के साथ उस तरफ बढ़ती चली आ रही है। जब ये किरण नज़दीक पहुंची तो मालूम हुआ कि किरण नहीं, एक रथ चली आ रही है जिससे ऐसी तेज रोशनी निकल रही है कि दिन चढ़ा हुआ मालूम होता है। इस रथ के आगे 4 अजदहे जूते हुए हैं और पल पल के बाद इन अजदहों के नथनों से शोले निकलने लगते हैं और इन शोलों के आगे जो चीज़ भी आती है जलकर स्याह हो जाती है। इस रथ में से एक बड़ी हसीन औरत अजीब आन बान से बैठी हुई है और उसके हुस्न का ये आलम है कि अगर चांद उसकी सूरत देख ले तो शर्म के मारे बदली की ओट में अपना मुंह छुपा ले, और अगर सूरज इसकी सूरत देख ले तो शर्म से पानी पानी हो जाए। जब ये रथ उस मैदान में पहुंची तो ये खूबसूरत मलका रथ से नीचे उतरी और सुनहरी तख्त पर बैठ गई। तब रंग बरंगे परों वाले मोर तख्त के गिर्द घेरा डालकर नाचने लगे और नन्हे नन्हे परिंदे मोहब्बत के जोश में मलका के सर और कंधों पे आ बैठे और अपने रसीले गीतों से मलका का दिल खुश करने लगे। तब मलका ने इन परिंदों को जादू की बातें सिखानी शुरू की कि कौन सा गीत गाया जाए तो बाहर आ जाती है, फूल खिल जाते हैं, और कौन सा गीत गाया जाए तो बादल उमड़ आते हैं, मींह बरसने लगता है, और किस तरह एक ही बार उड़कर सारी दुनिया का चक्कर लगाया जा सकता है, और किस तरह बेजान परिंदे में जान डाली जा सकती है। जब सितारे एक एक करके गायब हो गए, चांद किसी पहाड़ी के दामन में छुप गया, तो वो खूबसूरत मलका अपनी रथ में सवार हुई और उसके अजदहे जिस तरफ से आए थे उस तरफ बड़ी तेजी से दौड़ने लगे और दूर पहुंचकर ये रथ फिर एक किरण सी नजर आने लगी। दम भर में ये किरण भी नजरों से ओझल हो गई। तब सब परिंदे अपने अपने ठिकानों को लौटे और वो तीनों फाख्ताएं दियो की बेटियां अपने महल की तरफ वापस आईं और बुलबुल के भेष में सिपाही भी उनके पीछे पीछे उड़ता चला। अपने महल में पहुंचकर ये फाख्ताएं इस अजीब व गरीब कालीन पर चली और झट अपने असली रूप में आ गईं। बुलबुल भी इसी कालीन पर चला और देव की बेटियों के सामने झट सिपाही बनकर खड़ा हो गया। देव की बेटियां हैरानी से तकती की तकती रह गईं, फिर चिल्लाकर बोली, कहाँ थे तुम? तब सिपाही ने कहका लगाया और कहा, वहां जहां एक रात में 2 चांद निकले हुए थे। ये कहकर सिपाही ने फिर कहकहा लगाया और कहा, वहां जहां 14वीं रात की चांदनी में एक चांद तारों से ज्यादा हसीन मलका जादू की बातें सिखाती है। ये सुनकर दियो की बेटियां एक दूसरे का मुंह देखने लगीं। आखिर कहने लगीं, मियाँ सिपाही ज़ादे, किस्मत के धनी हो जो इस मलका की सूरत देखकर जिंदा सलामत चले आए, वरना तुमने तो अपनी जान खोने में कोई कसर ना उठा रखी थी। आज तक अव्वल तो किसी को इस मलका की सूरत देखने की जुर्रत ही नहीं हुई, फिर जिस किसी ने इसकी सूरत देख ली वो जिंदा नहीं रहने पाया। ये मलका जो तुमने देखी है इसका नाम मेहर निगार है। तमाम दुनिया में इस मलका से बढ़कर जादू और तिलिस्म कोई नहीं जानता। दुनिया के तमाम जादूगर इसका नाम सुनकर कांप कांप उठते हैं। इस मलका के पास एक अजाइबात की किताब है। अगर वो खुदा न खास्ता ये किताब देख लेती और उसे तुम्हारी इस हमाकत का पता लग जाता तो उसके अजदहों ने तुम्हें कभी का टुकड़े टुकड़े कर दिया होता और उनके शोलों ने तुम्हारी हड्डियों को फोक दिया होता। इसलिए ए नादान सिपाही, आगे को खबरदार रह। अगर तू चाहता है कि तेरा सर तेरे कंधों पर सलामत रहे तो फिर कभी उस मैदान की तरफ न जाइयो और फिर कभी उस जादूगर मलका की सूरत ना देखियो। लेकिन देव की बेटियों की ये बातें सिपाही ने एक कान से सुन उस कान से उड़ा दी। ये दिन सिपाही ने बड़ी बेचैनी से गुजारा। जब खुदा खुदा करके रात हुई, आसमान पर चांद निकल आया तो दियो की बेटियां फिर फाख्ताएं बनकर उस सब्जाजार की तरफ उड़ीं और सिपाही झट बुलबुल का रूप भरकर उनकी नजरों से बचता हुआ पीछे पीछे हो लिया। मैदान में पहुंचकर तीनों फाख्ताएं तो परिंदों में जा मिली और ये बुलबुल फिर उस झाड़ी में छुपकर बैठ गया और बड़ी बेसब्री से मलका मेहर नगार की रथ का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद
मलका की रथ नमूदार हुई। जूं ही उसने मलका की सूरत देखी, उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा और उसे किसी बात का होश ना रहा। मलका मेहरनिगार कल की तरह आज भी परिंदों को जादू की बातें सिखाने लगी और सब परिंदे बड़े गौर से उसकी बातें सुनने लगे। लेकिन बुलबुल ने मलका के खूबसूरत चेहरे की तरफ नजरें गाड़ रखी थीं और बस जब चांद छुप गया और परिंदों की महफिल बर्खास्त हो गई तो मलका अपनी रथ में सवार होकर अपने महल की तरफ चल दी। तभी बुलबुल भी झाड़ी में से बाहर निकला और बड़ी तेजी से अपने पर फड़फड़ाता हुआ मलका की रथ के साथ साथ उड़ने लगा। कुछ देर बाद एक बड़ा आलीशान महल नजर आया और रथ इस महल के सामने आकर रुक गई। इस महल की दीवारें जादू की बनी हुई थीं और महल के दरवाजे के बाहर दो काले देव पहरा दे रहे थे। इन देवों ने आहिस्ता से मलका को उठाया और महल के आलीशान ईवानों में से होते हुए मलका को एक नहायत नफीस और बड़ी उम्दगी से सजाए हुए कमरे में पहुंचाकर आप फिर महल के दरवाजे पर पहरा देने लगे। इस कमरे की खूबसूरती का क्या कहना। चारों तरफ पटापटी के पर्दे पड़े हुए थे। दीवारों पर अजीब व गरीब तस्वीरें लटकी हुई थीं। ये तस्वीरें इस कारीगरी से तैयार की गई थीं कि जब मलका उनकी तरफ आंख उठाकर देखती थी तो ये बेजान तस्वीरें ताज़ीम के लिए झुक जाती थीं। अपने सोने के कमरे में पहुंचकर मलका ने अपनी जर्क बर्क पोशाक उतारी और बनफशी रंग की एक हल्की फुल्की पोशाक पहन ली। ये पोशाक ऐसी मुलायम थी कि जैसे तीतरी का पर। तब वो अपनी फूलों की सेज पर आराम करने के लिए लेट गई। जिस कमरे में मेहर निगार सो रही थी उस कमरे की खिड़की के नीचे एक हार सिंगार का पेड़ था। इसकी एक नाजुक सी शाख पर वो बुलबुल जा बैठा और अपनी जादू भरी आवाज से एक ऐसा गीत गाने लगा कि हवा में चारों तरफ आहें भरने की आवाजें आने लगीं। यकायक मेहरनिगार चौंक उठी और हैरानी से इधर उधर देखने लगी। ये कौन गा रहा है? बुलबुल की इस दर्द भरी लय ने उसके दिल में एक आग सी लगा दी। उसकी आंखों से नींद उड़ गई और वो बेचैन होकर अपनी सेज पर करवटें बदलने लगी। आखिर उसने अपनी लोंडी को आवाज दी और कहा, इस खिड़की के नीचे कोई परिंदा बड़ी मीठी आवाज में गा रहा है। जा इसे पकड़ ला। लोंडी महल से नीचे उतरी, हार सिंघार के पेड़ के नीचे पहुंची, अपने होंठों पर शहद का एक कतरा रखा और बुलबुल को अपनी तरफ बुलाने लगी। लेकिन वो न आया और उसी शाख में बैठा हुआ गीत गाता रहा। तब मलका की लोंडी ने हार सिंघार के पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ना चाहा, पर बुलबुल फुदक कर इस शाख से उस शाख पर और उस शाख से इस शाख पर जा बैठता। आखिर मायूस होकर लौंडी खाली हाथ वापस लौट आई। तब मलका खुद आई और हार सिंगार के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपना हाथ बुलबुल की तरफ फैला दिया और बुलबुल झट शाख से उड़कर मलका के हाथ पर इस तरह जा बैठा जैसे मलका का हाथ भी हार सिंगार ही की कोई शाख है। इस पर मेहर निगार बहुत खुश हुई, बुलबुल को अपने कमरे में ले गई, खिड़की में सच्चे मोतियों का एक छोटा सा झूला डाला और बुलबुल को इसमें बिठा दिया और आप अपनी सेज पर लेट गई। तब बुलबुल खुशी से चहचहाने लगा। उसकी रसीली और दिल में उतर जाने वाली आवाज़ सुनकर मलका के बाग के तमाम परिंदे उसे पुकारने और अपनी तरफ बुलाने लगे और एक अजीब समा बन गया। मलका के महल के चारों तरफ परिंदों के गीत ही गीत सुनाई देने लगे और हवा में एक मिठास सी पैदा हो गई। बड़ी देर तक सब्ज बुलबुल मज़े से झूला झूलता रहा और मलका के हुस्न की तारीफ में गीत गाता रहा, यहाँ तक कि मेहर निगार मीठी नींद सो गई। अगली रात जब चांद निकला तो मलका फिर अजदहों की रथ में सवार होकर इसी सब्जाजार की तरफ गई और चांद छुपने पर अपने महल को लौट आई। अपने कमरे में दाखिल होकर मलका की नज़र सबसे पहले जिस चीज़ पर पड़ी वह सब्ज बुलबुल था, जो मोतियों के झूले में बैठा गीत गा गा कर मेहर निगार को याद कर रहा था। बुलबुल की जुबान से अपना नाम सुनकर मेहर निगार का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने एक अजीब दिलरुबाई के अंदाज से बुलबुल की तरफ देखा, फिर उसी वक़्त अपनी लोंडी को आवाज़ दी और शहद मंगाकर अपने हाथ से बुलबुल को खिलाने लगी। फिर अपनी सेज पर लेट गई और बुलबुल के गीत सुनते सुनते सो गई और अजीब व गरीब ख्वाब देखने लगी। उधर बुलबुल मोतियों के झूले में बैठा
ملکہ کے خوبصورت چہرے پر سے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں نہ ہٹاتا تھا۔ دل میں کہنے لگا، آہ یہ مہر نگار کیسی حسین ہے، یوں سوئی پڑی ہے جیسے کوئی ننھی سی تیتری گلاب کی کسی پتی سے لپٹی ہوئی خوشبو میں بسی ہوئی سو رہی ہو۔ اس سے دور رہنا مر جانے کے برابر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے جھولے سے اڑا اور ملکہ کے سرہانے جا بیٹھا اور بڑی محبت سے اپنی سنہری چون سے مہر نگار کے لمبے لمبے بالوں کو سنوارنے لگا۔ ملکہ کے بالوں سے بڑی بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ سوتے سوتے ملکہ کے نازک ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ یکا یک چونک اٹھی اور اپنی آنکھیں کھول دیں۔ بلبل کے دل میں چور تو تھا ہی، یہ جھٹ ملکہ کے سرہانے سے اڑا اور اپنے جھولے میں جا بیٹھا۔ ملکہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر اپنے دل میں کہنے لگی، اللہ جانے یہ کیا بھید ہے۔ تب اس نے اپنی عجائبات کی کتاب کھولی۔ پہلے ہی صفحے پر موٹے حروف میں لکھے ہوئے یہ الفاظ نظر آئے، یہ تو اس سے پوچھ جسے تو نے موتیوں کے جھولے میں بٹھا رکھا ہے، جس کی زبان پر ہر دم تیرا نام رہتا ہے اور جسے تو اپنے دل سے عزیز رکھتی ہے۔ مہر نگار سمجھ گئی، اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ سرسبز بلبل کے پاس گئی اور چلا کر کہنے لگی، اے مکار گویے، میں تیرا فریب سمجھ گئی ہوں، سچ بتا تو کون ہے؟ شاید بلبل اپنی زبان کھولتا، مگر ملکہ نے اس کی طرف ایک ایسی جادو بھری نظر سے دیکھا کہ پل بھی نہیں گزرنے پایا تھا کہ بلبل وہی خوبصورت سپاہی بن کر نیچی نظریں کیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ملکہ بولی، اے بد نصیب شخص، یہ تو نے کیا کیا؟ تجھے اپنی جان پیاری نہ تھی، لیکن اب تیار ہو جا کہ تیرے جرم کی سزا تیرا سر ادا کرے گا۔ سپاہی نے نیچے نظریں کیے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ تب ملکہ نے تالی بجائی، چھٹکالے دیو حاضر ہو گئے۔ مہر نگار بولی، جاؤ اس کھڑکی کے نیچے قتل کا تختہ رکھ دو اور جلاد سے کہہ دو کہ میرے دشمن کا سر اڑانے کے لیے جلد حاضر ہو جائے۔ یہ سن کر دیو نے اپنا سر جھکایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ آن کی آن میں ملکہ کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے اسی ہار سنگھار کے درخت کی چھاؤں میں، جس کی شاخ پر بیٹھ کر بلبل نے گیت گایا تھا، قتل کا تختہ رکھ دیا گیا اور جلاد چمکتی کٹار اپنے کندھے پہ رکھے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ تب ملکہ کے دیو سپاہی کو پکڑ کر اس تختے کے پاس لے گئے اور سپاہی نے اپنی گردن اس تختے پر رکھ دی۔ مہر نگار ہاتھ میں ایک سفید رومال پکڑے کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ جلاد کٹار اٹھائے ملکہ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ ملکہ رومال سے اشارہ کرے تو سپاہی کا سر اڑا دے۔ یکا یک سپاہی نے اپنا سر تختے پر سے اٹھا لیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ملکہ سے درد بھری آواز میں کہنے لگا، اے ملکہ، میری ایک التجا ہے، صرف ایک آخری التجا۔ ملکہ بولی، اے جوان کہہ، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ سپاہی نے کہا، اے ملکہ، اجازت دے کہ ایک بار اور گیت گا لوں اور بس پھر شوق سے میرا سر اڑا دیجیو۔ ملکہ بولی، اچھا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، لیکن جلدی سے گیت گا لے۔ اجازت ملنے کی دیر تھی۔ سپاہی نے گانا شروع کر دیا اور گیت ہی گیت میں اپنی محبت اور ملکہ کی سنگ دلی کا خوب شکوہ کیا، اور یہ گیت سپاہی نے کچھ ایسی درد بھری لے میں گایا کہ ملکہ کا دل بھر آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ دیکھ کر سپاہی نے اور بھی درد بھری لے میں گانا شروع کیا۔ اب اس کی آواز میں کچھ ایسی آگ بھری ہوئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ملکہ کے دل کو جلا ڈالے گی۔ آخر ملکہ سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے سپاہی کو چپ ہو جانے کا اشارہ کیا۔ سپاہی چپ ہو گیا اور اپنی گردن پھر اسی تختے پر رکھ دی، مگر ملکہ بولی، اے جوان، تیرے گیت نے میرے دل پر بہت اثر کیا ہے، میں اس کے صلے میں تجھے 10 گھنٹوں کی مہلت دیتی ہوں۔ اگر اس عرصے میں تو نے دنیا کا کوئی ایسا کونا یا ٹکڑا معلوم کر لیا جو مجھ سے اور میرے جادو سے چھپا ہوا ہو تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی، لیکن اگر تو کامیاب نہ ہوا تو سمجھ لیجیو کہ تیری قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ گئی۔ یہ کہہ کر ملکہ نے اپنے دیوؤں کو حکم دیا کہ سپاہی کو چھوڑ دو۔ سپاہی وہاں سے چلا آیا اور گھنے جنگل میں پہنچ کر ایک پتھر پہ بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔
पिछले वाक़ियात एक एक करके इसकी आंखों के सामने फिरने लगे। ख्याल ही ख्याल में क्या देखता है कि चांदनी रात में तलवार निकालकर उसी बुर्ज के बाहर मज़े मज़े से पहरा दे रहा है। पहले की तरह 20 कदम आगे चलता है और फिर 20 कदम वापस लौट आता है। दिल में ना किसी बात की ख्वाहिश है न गम, अपने काम से मतलब। फिर यकायक ख्याल ही ख्याल में उसके कानों में एक चीख की आवाज़ आई और वो तैश में आकर चिल्ला उठा, ए अंधेरे के देव, खुदा करे तुझ पर हमेशा लानत बरसती रहे, ये सब तेरी ही बदौलत है। ए पाजी देव, अच्छा था कि तू उसी बुर्ज में बंद रहता और घुट घुट कर मर जाता। सिपाही ये कह ही रहा था कि देव न जाने कहाँ से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, भैया खफा क्यों होते हो? देखो तो मैं तुमने मुझे याद किया और मैं फौरन तुम्हारे पास चला आया। अब कहो क्या चाहते हो? सिपाही ने एक आह भरकर अपना सर झुका लिया मगर कुछ जवाब ना दिया। लियो ने बहुत इसरार किया तो सिपाही ने फिर एक आह भरी और कहा, भाई क्या बताऊं, मेहरनिगार ने बड़ी कठिन शर्त लगा दी है। कहती है कि दुनिया का कोई ऐसा कोना या टुकड़ा तलाश कर लो जो मेरे जादू से बाहर हो। ये सुनकर दियो ने अपना पाँव जमीन पर मारा और झट एक अजीब व गरीब उकाब बन गया। ये उकाब कहने लगा, आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें मलका मेहरनिगार के जादू से बाहर ले चलूंगा। ये सुनकर सिपाही उकाब की पीठ पर सवार हो गया और उकाब उसे नीले आसमान की तरफ ले उड़ा और आन की आन में इतना ऊंचाई पर पहुंच गया कि जमीन गर्द का एक जर्रा नजर आने लगी। थोड़ी देर में ये जर्रा भी नजरों से ओझल हो गया। सिपाही के देखते ही देखते ये उकाब बादलों में मीह की मलका के रुपहले महल से भी ऊंचा पहुंच गया। मीह की खूबसूरत मलका धनक की सीढ़ियों पर से उतर रही थी, नहाकर आई थी और बार बार अपने भीगे हुए बालों को झटकती जाती थी। अब ये उकाब तेजी से आंधी की मलका के सियाह महल से भी ऊंचा निकल गया। ये सियाह फाम मलका अपने महल के बुर्ज में खड़ी थी, नीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी। जब कभी ये बदसूरत मलका अपनी चादर हिलाती थी तो हवा में एक तूफान में जाता था। 5 घंटे गुजर गए तब मलका मेहरनिगार ने अपनी अजायबात की किताब खोली और खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिपाही और उकाब मेहरनिगार की अजायबात की किताब में इस तरह नजर आ रहे थे जैसे एक तस्वीर। मलका कहने लगी, उड़े जा ए परिंदों के सरताज, परिंदे उड़े जा, तेरे बाजू बहुत ताकतवर हैं लेकिन मेहरनिगार का जादू इनसे भी कहीं ज़बरदस्त है। नीचे उतर आओ, तो मुझसे छुप नहीं सकते। उकाब मायूस होकर ज़मीन पर उतर आया और अपनी असल देव की सूरत में आ गया। सिपाही ने कहा, अब क्या होगा? ये सुनकर देव ने अपना सर झुका लिया और एक गहरी सोच में डूब गया। यकायक उसने सिपाही के शाने पर हाथ मारा। उसी वक़्त सिपाही गायब हो गया और उसकी जगह ज़मीन पर एक छोटी सी सुई पड़ी थी। देव ने ज़मीन पर फिर अपना पाँव मारा और झट रेशम के ऐसे बालों वाली एक नन्ही सी चूहिया बन गया। तब चूहिया सुई को अपने दांतों में पकड़कर बड़ी तेजी के साथ मलका मेहरनिगार के महल की तरफ दौड़ गई और मलका के ईवानों में से होती हुई मलका के सोने के कमरे में जा पहुंची। मलका की अजायबात की किताब तलाश करके चूहिया ने इसके वर्कों में चुपके से यह सुई रख दी। 5 घंटे और गुजर गए। मलका ने अजायबात की किताब खोली, देखा तो किताब के सब सफ़े बिल्कुल कोरे थे, किसी सफ़े पर एक हरफ न लिखा था। मेहरनिगार ने बेहतरा वर्कों को उल्टा पलटा पर उसे मालूम न हो सका कि इस वक्त सिपाही कहाँ है। ये देखकर गुस्से से मलका की आंखों से शोले निकलने लगे। उसने तैश में आकर किताब को ज़मीन पर पटक दिया। किताब के पटकने से वो सुई बाहर निकल आई। मेहरनिगार अच्छी तरह इस सुई को देखने भी ना पाई थी कि उसने देखा कि खूबसूरत सिपाही खड़ा मुस्कुरा रहा है। सिपाही को देखकर मलका ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं और अपना हाथ सिपाही के हाथ में देकर आहिस्ता से कहने लगी, ए जवान, तूने मेरी अकल गुम कर दी है और मुझे जीत लिया है।